आज 2 अक्टूबर को सोनम वांगचुक ने महात्मा गांधी को ट्रिब्यूट पेश करने के बाद अपना जो अनशन है वो भी तोड़ा है और अभी जो है जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम पेश किया है और इस मेमोरेंडम में लद्दाख के जो डिमांड्स है वो उनके सामने रखा है। कुछ झलकियाँ आप तक पहुँचाएंगे। सोनम वांगचुक और जो यात्रीज हैं वो अब जो हैं उन्होंने अपना पद यात्रा जो है वो मुकम्मल किया है और इस वक्त राजघाट से बाहर की ओर बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे। Thank you, sir. We wait to hear about the appointment in the next few days. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sir, जैसा आपको मालूम है हम 2 दिन से तो डिटेंशन में थे, मगर हमारी उम्मीद ये थी कि हम किसी तरह बापू के समाधि पर पहुंच सके 2 अक्टूबर को, तो हम पहुंच सके, इसका हम धन्यवाद कहते हैं। हालांकि रुकावट थोड़ा दिक्कत था, मगर खुशी इस बात की है कि इससे हमारा जो हमारे मुद्दे हैं या जो अवेयरनेस हम करना चाहते थे वो काफ़ी हद तक लोगों तक पहुंचा। तो इसमें हम एक तो मेमोरेंडम आपको प्रेजेंट करते हैं जिससे कि आप लीडर्स ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड को एड्रेस्ड है ये, और दूसरा हमारी उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में हमारी मुलाकात जो पद यात्री आए हैं और लद्दाख के लीडर्स हैं उनका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट और ऑनरेबल होम मिनिस्टर इनमें से एक से हो। तो MHA ने हमें पूरा आश्वासन दिया कि अगले ही दिनों में ये मीटिंग भी फिक्स होगी। हम इस उम्मीद पे ये मेमोरेंडम देकर अपना अनशन तोड़ रहे हैं। तो हम इस वादे पर, इस आश्वासन पर भरोसा करके कुछ दिनों में मिलने की उम्मीद करेंगे अपने शीर्ष नेताओं से देश के। तो जहाँ तक ये मेमोरेंडम है, ये लद्दाख से लेह से दिल्ली तक जो 150 से भी ज़्यादा पद यात्री लेह और कारगिल दोनों से आए हैं, एपेक्स बॉडी KDA और पूरे लद्दाख के लोगों के बिहाफ पर, वो ये प्रेजेंट करना चाहते हैं हमारे शीर्ष नेतागण के लिए। और मैं इसको पढ़ लेता हूँ। टुडे ऑन दिस 2 October 2024, 150 पदयात्रीज who have come from Leh to Delhi on foot march of over 800 kilometers in 30 days, crossing some of the world's highest passes to submit this memorandum to the leadership of India and the world for their consideration. At level of Ladakh, what we expect is for the consideration is that the High Power Committee for resolving Ladakh's 4-point agenda of statehood and 6th schedule has been slow and stalled for the last few months. We appeal to the government to resume these talks within the next 15 days. This is our appeal, sir. Apart from solving immediate problems of people of Ladakh, local democracy will give responsibility and stewardship of the fragile ecology of this sensitive trans-Himalayan region to the indigenous tribal people who have been living there in harmony with nature for millennia and will be affected for generations if mistakes are made in this sensitive region. At national level, our appeal is that our glaciers in the Himalayas are a source of water for 1/4 of the world's population. They are melting very fast due to global warming. Every country needs to play its role in curbing climate change before it is too late. We urge the government of India to reconsider its target for carbon neutrality from 2070 to a more urgent time frame like most countries in the world. तो जैसा 2070 बहुत दूर का है, ज़्यादातर देशों ने 2030, 40, 50 रखा है, तो इंडिया भी रिकन्सिडर करे, ये हमारी प्रेयर है। At the global level, we appreciate initiatives like Mission Life that our Prime Minister has launched to bring change in people's lifestyle in the big cities of the world. We urge the government to promote it more effectively, as reducing on the demand side is the only way to reducing on the supply side to save damage to nature either by governments or corporates world over.
सो हम दुनिया को एक रास्ता दिखाएं by reducing the demand side from citizens and not just supply side. Therefore, today on the birth anniversary of Mahatma Gandhi, we appeal to the people of the world in Gandhiji's own words, live simply so that others may simply live. Save Ladakh, save Himalayas, save the planet. So we submit this, sir, to be taken to the highest level in the country and beyond. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Sigue. Sir. Himalaya will. Hamar Dolmale is from Phe village of Ladakh. ये 90 वर्ष की हैं और स्विट्जरलैंड से इसी ये स्विट्जरलैंड से इसी पद यात्रा के आखिरी हिस्से में जुड़ने के लिए और ज़रूरत पड़े तो ये आमरण अनशन के लिए जुड़ने के लिए आए। उसकी ज़रूरत अभी नहीं पड़ी है तो हम आज अनशन तोड़ेंगे। क्या जुले रिसीव कर रहे हैं दिल्ली के जो स्टूडेंट यूनियंस हैं। अफ्ताब साहब मुबारक।
तो जाने दो, आप जाने दो। उल्टा चल जाओ, गिर जाओगे आगे तो थोड़ा पीछे ही है। Excuse me. पुलिस खजाना लिया। अफ्ताब साहब मुबारक।
찍네 봐. फायदे से क्यों नहीं? जी बोलिए सर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम 150 से भी अधिक पदयात्री लेह से दिल्ली तक पहुंचे, जिसमें लेह और कारगिल दोनों के बड़े बूढ़े महिलाएं बहुत से लोग थे। दिल्ली पहुंचने पर हमें थोड़ी दिक्कतें तो हुई क्योंकि डिटेंशन हुआ, मगर जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे हमारी जो संदेश है पर्यावरण के संरक्षण का वो और ज़्यादा देश भर तक फैला, इसके लिए हम बहुत खुश हैं। तो हम यही कहेंगे, आज गांधी जयंती पर हम गांधी जी के खास जो संदेश हैं पर्यावरण के बारे में वही दिल्ली को कहेंगे कि हम अपने जीवन शैली को इतना सादा करें कि और लोग जी पाएं। प्लीज लिव सिंपली सो दैट अदर्स में सिंपली लिव। तो गांधी जी ने जो हमें सिखाया अगर उस पे चलें तो लद्दाख और हिमालय का पर्यावरण जो बिगड़ रहा है वो शायद ना बिगड़े, क्योंकि जब आप दिल्ली में या बम्बई में, बेंगलोर में, पेरिस, लंदन में बिजली का ज़ाया करते हैं, ज़्यादतियाँ करते हैं, तो हमारे पहाड़ों से नदियाँ घाटियाँ डूब जाती हैं, चरागे बिजलीघर के लिए दे दिए जाते हैं, लोग विस्थापित होते हैं। तो इसलिए लिव सिंपली सो अदर्स में सिंपली लिव का जो संदेश है वो हमें याद करने की ज़रूरत है। और जो बापू ने कहा था, देयर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट एनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड। सबकी ज़रूरतों के लिए इस धरती पर काफ़ी है, मगर सबकी ज़्यादतियों के लिए, ऐश और अयाशी के लिए काफ़ी नहीं है। तो इसलिए जी तो हमने सरकार से ये मेमोरेंडम दिया है कि लद्दाख को वो ऐसे संवैधानिक प्रावधानों में संरक्षित करें जिससे कि हिमालय संरक्षित रहे। तो लद्दाख के केस में 6वां शेड्यूल है संविधान का ऐसा प्रावधान जो कि जनजातीय स्थानीय लोगों को लद्दाख के प्रबंधन का, गवर्नेंस का जिम्मेदारी देता है, स्टीवर्डशिप